خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. السلام علیکم جی، میرا نام باسط علی ہے اور میرا تعلق ناصر مارکیٹنگ سے ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد وقاص احمد، جو کہ رشتے میں میرے بڑے بھائی ہیں. ایکچولی ہم بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ نوا پشاور، اور ہمارا یہ ایک پلان ہوا کہ کیوں نہ ہم آپ لوگوں سے اس چیز کو ڈسکس کریں، آپ تک یہ انفارمیشن پہنچیں. تو آئیں چلتے ہیں وقاص مغل کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نوا پشاور کیا چیز ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا بھائی، نوا سٹی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سوسائٹی میں ایک چیز بہت میٹر کرتی ہے اور وہ ہے لوکیشن. تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ نوا پشاور کی لوکیشن کیا ہے؟ جی بالکل، لوکیشن نو ڈاؤٹ اتنی ہی ویلیو رکھتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس میں، کیونکہ جتنی اس کی ایکسیسیبلٹی آسان ہوتی ہے نا میجر ایریاز سے، اتنا ہی فیوچر میں اس کی جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے اچھا کیا کہ پہلا کویشچن ہی لوکیشن کے بارے میں پوچھا. تو نوا پشاور کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ ہے M1 موٹر وے چارسدہ انٹرچینج کے بالکل پاس. ابھی کچھ دن پہلے ایک بیلٹنگ کی گئی. پہلے وہ بیلٹنگ پلانڈ تھی سائٹ کے اوپر، بٹ ڈیو ٹو جو ہمارے ملک میں سچویشن چل رہی ہے اس وجہ سے سائٹ پہ بیلٹنگ نہیں کی جا سکی. اب انشاءاللہ 21 مئی کو سائٹ کے اوپر بیلٹنگ کی جائے گی، جس میں سب کو یہ چیز اوپن ہو جائے گی ایگزیکٹ سائٹ کیا بن رہی ہے، کتنا ایریا کورڈ ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ لانچنگ کے ساتھ ہی مور دین 20,000 کنال جو ہے لینڈ ہے وہ آلریڈی ایکوائر کی جا چکی ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی، بہترین. اچھا، اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، مجھے یہ جاننا تھا کہ نوا پشاور کیوں لانچ ہو گیا جبکہ ابھی نوا اسلام آباد کی کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. بہت سارے کلائنٹس جو ایگزسٹنگ ہمارے کلائنٹس ہیں وہ بھی یہ بات پوچھتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز کو سمجھیں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پشاور کے اندر اور اس لوکیلٹی میں ایک نئی اور میگا ہاؤسنگ سوسائٹی کی بہت زیادہ اسپیس تھی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہاں پہ کوئی ایسی گیٹڈ کمیونٹی پراپر جو ہے نا، جو کہ ابھی انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہو، وہاں کے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں اور فیوچر میں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ایک سیف انویسٹمنٹ کر سکیں، ویسا کوئی پراپر آپشن اویلیبل نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی لانچ نہ کرتے اور تھوڑا لیٹ کرتے اور ان سے پہلے کوئی اور وہاں پہ لانچ کر لیتا تو یہ پیورلی ایک بزنس اسٹریٹجی تھی. جہاں تک بات ہے نا ڈیولپمنٹ کی، نووا گروپ ماشاءاللہ اس لیول کے ڈیولپرز ہیں، انہوں نے آلریڈی اتنا کام کیا ہوا ہے کہ یہ چیز فرق نہیں پڑتا کہ وہ نووا پشاور میں لانچ کر رہے ہیں تو وہ نووا اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم اس کے علاوہ کام کرتے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کا. جب لاہور اسمارٹ سٹی لانچ ہوا تھا تب بھی مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ HRL یہ کیا کام کر رہا ہے کہ کیپٹل کو بھی تک ڈیلیور نہیں کیا، لاہور میں کدھر چلے گئے ہیں، لاہور میں کیسے اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے اور ڈیلیوری دیں گے. لیکن وقت جو ہے نا وہ بہترین جواب دیتا ہے. اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں لوگوں کو کتنے اچھے ریٹرنز مل رہے ہیں، کیسی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی 1 منٹ کا کام نہیں رکا. تو یہی چیز ہے کہ جب ڈیولپر اسٹرانگ ہو، فائنینشلی بھی، سسٹمیٹکلی بھی ٹیم اسٹرانگ ہو اس کے پاس، تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ نووا اسلام آباد کے بعد نووا پشاور کیوں کر رہا ہے اور پھر نووا لاہور میں کیوں جا رہا ہے. ہر جگہ اس کی بزنس اسٹریٹجی الگ میٹر کرتی ہے اور کنسٹرکشن الگ ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ جائیں نووا اسلام آباد کی سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نووا اسلام آباد کی سائٹ پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اوپن مارکیٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ بنائیں گے. نووا اسلام آباد کی اوپن مارکیٹ اس وقت الحمدللہ اتنی تیزی سے فلورش کر رہی ہے، انویسٹرز کو بھی اینڈ یوزرز کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. ایک کافی لمبے عرصے سے مارکیٹ ڈاؤن تھی ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، کچھ پولیٹیکل تھے، کچھ مختلف وجوہات کی وجہ سے. میں ابھی ذرا کھول کے زیادہ بات نہیں کر سکتا، بھائیوں میں ہوتی میں کر لیتا لیکن کیمرہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف وجوہات کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن ابھی الحمدللہ ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. ابھی آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے اور یہی پرفیکٹ ٹائم ہے نووا پشاور میں بھی انویسٹ کرنے کا، کیونکہ
जब एक चीज़ का स्टार्ट होता है ना, तभी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस होता है। ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक इस क्लैरिफिकेशन के बाद हमारे व्यूअर्स को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मुझे बताएं कि नोवा पेशावर में अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं और उसके रेट्स क्या चल रहे हैं? जी बिल्कुल, यही परफेक्ट टाइम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइम पे ये प्री लॉन्च स्टेज है। अभी बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हुए, अभी इसकी मैसिव मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ये टाइम है, इस टाइम पे आप अगर बुकिंग कराएं, आपको इजीली बुकिंग भी मिल जाएगी। वो मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा था टॉम एंड जेरी का। टॉम एंड जेरी मतलब कार्टून में बचपन जो हम देखा करते थे, उसमें ये था कि एक टाइम पे टॉम जेरी के पीछे भागता रहता था और फिर एक टाइम आता था कि रिवर्स हो जाता था। तो ये सेम साइकिल हमारे रियल एस्टेट के ऊपर भी आता है कि एक टाइम है कि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि बुकिंग ले लें, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न अच्छा आएगा। अभी कुछ कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो हमें कॉल कर रहे होंगे कि बुकिंग दे दो, तब हमारे पास बुकिंग नहीं होगी। और ये होता है, ये हर सोसाइटी में होता है, ये हर दफ़ा होता है, ठीक है। तो इस वक्त जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्री लॉन्च में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, ये 3 कैटेगरीज लॉन्च की गई हैं। 5 मरला की टोटल प्राइस है 25,50,000 और 20% से इसकी बुकिंग है। 10 मरला 46 लाख में है और 1 कनाल 76 लाख में है। ये इन दोनों की 10 मरला की और 1 कनाल की 10% से बुकिंग हो रही है, 5 मरला की 20% से हो रही है। सही माशाल्लाह। अच्छा भाई, एनओसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे एंड यूज़र और इन्वेस्टर के लिए, ये तो बताएं कि एनओसी की क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो नो डाउट इतनी वैल्यू रखता है। इन्वेस्टर्स हों, एंड यूज़र्स हों, हर किसी का पहला जो क्वेश्चन होता है, प्राइम फोकस होता है, वो एनओसी से ही होता है, क्योंकि एनओसी आपके बहुत सारे कंसर्न्स क्लियर कर देती है कि आपके पास लैंड है कि नहीं, आपके नाम पे है या आपने बयानों पे उठाई हुई है, और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करनी होती हैं। तो जब आपको एनओसी मिल गई है तो मीन्स इन द लॉन्गर रन आपको वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी, हेल्प आउट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नोवा पेशावर को जब लॉन्च किया गया तब ही इसके पास टीएमए की एनओसी, टीएमए का अप्रूवल बिल्कुल मौजूद था। अच्छा भाई, ये जो नोवा पेशावर जब लॉन्च हुआ था तो एक फॉर्म्स की कहानी बहुत आई थी। ये फॉर्म्स क्या चीज़ थी और इनकी सिचुएशन अब क्या है, अब ये कहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ जी, वो कहानी, अच्छा वो हुआ कुछ ऐसे कि नोवा ग्रुप ने फॉर्म्स लॉन्च किए नोवा पेशावर के। एक फॉर्म की जो फेस वैल्यू है वो 5,000 रुपीज़ है। वो कुछ 3 बैंक्स बताए गए कि वहाँ से उन फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। वो फॉर्म बेसिकली ये ऐसे थे कि एंड यूज़र्स का इंटरेस्ट मालूम किया जाए कि क्या वो नोवा पेशावर में इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हो या ना हो। और उस इंटरेस्ट के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि वो फॉर्म की ट्रेडिंग जो थी ना, वो विद इन वीक 5,000 से अराउंड 30,000 तक पर फॉर्म की प्राइस चलेगी, ठीक है। तो अगर प्राइस हाइक इतनी गई तो ये मार्केट की तो थी नहीं, इसमें एंड यूज़र इंटरेस्टेड था, वो फॉर्म्स थे ही एंड यूज़र्स के लिए। तो ये वजह है, ये चीज़ बताती है कि नोवा पेशावर का फ्यूचर क्या है और लोगों का एंड यूज़र्स का उसमें इंटरेस्ट क्या है। एक्चुअल में उन फॉर्म्स की कहानी ये थी कि वो फॉर्म और उसके साथ 70,000 रुपीज़ फीस जो है, वो जो भी एंड यूज़र है, एक बंदा एक फॉर्म करता है, 2 फॉर्म करता है, उसने पर फॉर्म के साथ वो फीस सबमिट करानी थी बैंक में या नोवा इस्लामाबाद, नोवा के जो ऑफिस है इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, पेशावर में भी ऑफिस है, वहाँ पे आपने क्लाइंट्स ने सबमिट करानी थी। उस सबमिशन के बाद उन्हीं फॉर्म्स की बैलेटिंग होनी थी, जो कि पहली बैलेटिंग हुई 23 मार्च को। 23 मार्च को जो बैलेटिंग हुई उसमें अराउंड 1000 प्लॉट्स की बैलेटिंग की गई। 700 प्लॉट्स थे उसमें 5 मरला के, 200 प्लॉट्स थे उसमें 10 मरला के और 100 प्लॉट कनाल के निकाले गए हैं। और अब नेक्स्ट बैलेटिंग उसकी की जाएगी 21 मई की। तो ये 2 तरीके से इसमें चल रहा है। एक ये कि एंड यूजर्स खुद आए, फॉर्म्स वगैरह परचेज करके अपनी फीस दे के सबमिट कराएं और बैलेटिंग में उनका नाम आए। सेकंड ऑप्शन ये है कि किसी भी ऑथराइज जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑथराइज डीलर्स हैं, जिनके पास डेडिकेटेड कोटा है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, तो आप उनसे रब्ता करके आप उनसे कंफर्म बुकिंग हासिल कर सकते हैं।
दोनों वेज से मिलेगी आपको बुकिंग। सिर्फ क्या है कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको कंफर्म मिल जाएगी, और अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि बैलेटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होती है। अगर आपका नाम निकल आया तो आपको प्लॉट मिलेगा, अगर आपका नाम ना निकला तो आपके पैसे आपको एज इट इज पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। अच्छा भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोवा पेशावर ही क्यों? हम बाकी प्रोजेक्ट्स पे नोवा पेशावर को ही तरजीह क्यों दे रहे हैं? काइंडली इस बारे में हमें थोड़ा गाइड कर दें। थैंक यू। बिल्कुल सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो यहाँ तक हमारी इतनी लंबी लेंथी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो बनता है कि उनको असल बात और अंदर की बात समझाई जाए, बताई जाए। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको दोबारा से लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर पंजाब का दिल है। पंजाब के लोग जब भी मतलब पहले तो इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं अपने इलाके में। अब जब उन्होंने प्योरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनका पहला जो स्टॉप होता है वो लाहौर होता है, क्योंकि सेंटर है, पंजाब का दिल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही वजह है कि लाहौर की मार्केट बहुत तेज़ है। ठीक है, तो यही एग्जांपल आप यहाँ पे आप अप्लाई करें कि पेशावर या M1 मोटरवे ये एक हब पॉइंट बनता है पूरे KPK के लिए, जहाँ पे तमाम KPK के लोग किसी ना किसी एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, जॉब्स के लिए इन्हीं एरियाज़ में आते हैं। तो इन एरियाज़ में ऐसी जगहों पे कोई एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी हो, तमाम फैसिलिटीज़ जहाँ प्रोवाइड की जा रही हो, ऐसी कोई सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो जिसको आम पब्लिक जिसको एंड यूज़र भी इजीली परचेज कर सके, और उसी के लिए ये इंस्टॉलमेंट्स वाला ऑप्शन निकाला जाता है। तो दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर जितने क्लाइंट से मैं मिल रहा हूँ ना, ये जो मुझे टच कर रहे हैं, वो मोस्टली एंड यूज़र्स हैं। वो अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने पहले भी बताया आपको कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो NOC के साथ और मोर देन 20,000 कनाल लैंड एक्वायर्ड है, इसके साथ इन्होंने उसकी लॉन्चिंग की है। फिर थर्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ बहुत कुछ है। जो हमारी पठान कम्युनिटी है उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हम यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट को देखते हैं तो हम यहाँ पे जानते हैं कि कितने KPK से, पेशावर से इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिफरेंट मार्केट को वो हेल्प आउट करते हैं बूम के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि जब उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके अपने एरिया में NOCs, लीगलिटीज़ के साथ, लैंड अच्छी, लोकेशन अच्छी, एक्सेसिबिलिटी अच्छी, इन तमाम चीज़ों के साथ लॉन्च हो रहा है, तो एक आम बंदा जिसने एक फाइल, दो फाइल या एक दो बुकिंग्स करानी है, उसको इस सब का कितना फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच भाई, माशाल्लाह मेरी जितनी कन्फ्यूजन्स थी और उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स की जितनी कन्फ्यूजन्स थी अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई होंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी किस्म की भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको ब्रीफली गाइड किया जाएगा। अपनी बहुत सी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।